নমস্কাৰ। জয় শ্ৰীৰাম কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক শ্লোগান হ'ব নোৱাৰে। চম্বলত মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰৰ পিছতেই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। লগতে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা প্ৰতিজন লোকৰে পূৰ্বপুৰুষ হৈছে হিন্দু আৰু হিন্দুসকলৰ দেশৰ সকলোতেই গেৰুৱা পতাকা লগোৱাৰ অধিকাৰ আছে বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। চম্বলত মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ পিছতে বিধানসভাত যোগী আদিত্যনাথৰ বিস্ফোৰণ। চম্বলৰ মুছলমান বহুল এলেকাত উদ্ধাৰ হৈছিল হনুমানৰ মূৰ্তি, শিৱলিংগ। 1978 চনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল মন্দিৰটো। এই স্থানত হিন্দু লোকে বাস কৰিছিল বুলি দাবী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ। মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰৰ পিছতে সদনত গৰজিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। মনত ৰাখিব লাগে, ভাৰতত থকা সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু। বাবৰ নামতো উল্লেখ আছে মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণৰ কথা। চম্বলতে আবিৰ্ভাৱ ভগৱান বিষ্ণুৰ দশমটো অৱতাৰ, এই মন্তব্য কৰিছে এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জুম্মাৰ নামাজৰ পিছতেই চম্বলত লৈছিল ভয়াৱহ ৰূপ। এই হিংসাত জড়িত কোনেও ৰেহাই নাপাব, এনেদৰে এতিয়া বিধানসভাত মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। জয় শ্ৰীৰাম কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক শ্লোগান হ'ব নোৱাৰে, এনেদৰেই বিধানসভাত মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। হিন্দুসকলে শেষ যাত্ৰাটো লয় ৰামৰ নাম। ইয়াৰ পূৰ্বে চম্বলত 209 জন হিন্দু লোকৰ লগত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। সেই নিৰীহসকলৰ বাবে কিন্তু কোনেও মাত নামাতিলে। মুছলমানসকলে আয়োজন কৰা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা মন্দিৰৰ সন্মুখেৰে নিৰাপদে যাব পাৰে, কিন্তু হিন্দুৰ ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত কিয় একাংশই সৃষ্টি কৰে সংঘাতৰ, এনেদৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। ভাৰতৰ ভূমিত থকা যিকোনো বস্তুতে গেৰুৱা পতাকা লগোৱাৰ অধিকাৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। চম্বলত মন্দিৰ উদ্ধাৰৰ পিছতে বিধানসভাত যোগীৰ বিস্ফোৰণ। চম্বলৰ মুছলমান বহুল এলেকাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু শিৱলিংগ, আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বিধানসভাত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। আৰু মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰৰ পিছতে সদনত গৰজিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। লগতে আদিত্যনাথে মন্তব্য কৰিছে, মনত ৰাখিব লাগে যে ভাৰতত থকা সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ হৈছে হিন্দু। বাবৰ নামতো উল্লেখ আছে যে মন্দিৰ ভাঙি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু চম্বলতে আবিৰ্ভাৱ ভগৱান বিষ্ণুৰ দশমটো অৱতাৰ, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে যোগীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে ভাৰতৰ ভূমিত থকা যিকোনো বস্তুতেই গেৰুৱা পতাকা লগোৱাৰ অধিকাৰ আছে হিন্দুসকলৰ। ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ হৈছে হিন্দু, আৰু হিন্দুসকলৰ দেশৰ সকলো স্থানতে গেৰুৱা পতাকা লগোৱাৰ অধিকাৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া যোগী আদিত্যনাথে। আৰু চম্বলত জুম্মাৰ নামাজৰ পিছতেই যি ভয়াৱহ বা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, হিংসাত জড়িত কোনেও ৰেহাই নাপাব বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। লগতে কৈছে যে জয় শ্ৰীৰাম কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক শ্লোগান হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু হিন্দুসকলে শেষ যাত্ৰাটো লয় ৰামৰ নাম, গতিকে জয় শ্ৰীৰাম কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক শ্লোগান হ'ব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চম্বলত 209 জন হিন্দু লোকৰ লগত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। আৰু এয়া হৈছে চম্বলত দৃশ্য। ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল হনুমানৰ মূৰ্তি, আৰু আমি আপোনালোকক ইয়াত দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। চম্বলৰ এয়া হৈছে চম্বলত দৃশ্য। ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু শিৱলিংগ, আৰু 1978 চনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল মন্দিৰটো, এই দাবী যোগী আদিত্যনাথৰ। আৰু চম্বলৰ এই এলেকাত হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু শিৱলিংগ উদ্ধাৰৰ পিছতে এতিয়া বিধানসভাত গৰজি উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ।
এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে চম্বলত দৃশ্য। এনেদৰেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল চম্বলত হনুমানৰ মূৰ্তি আৰু শিৱলিংগ। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া বিধানসভাত গৰজি উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। আৰু এই স্থানত হিন্দু লোকে বাস কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু বিধানসভাত যোগী আদিত্যনাথে আজি কি মন্তব্য কৰিছিল চম্বলক লৈ বা চম্বলৰ ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰৰ পিছতেই যোগী আদিত্যনাথে কি মন্তব্য কৰিছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাব লৈছোঁ। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरा नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है, और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं,
हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं। या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है।